बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम ओम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का ताना ना तेरे नाम, आदि का ताना ना तेरे नाम, आदि का ताना ना तेरे नाम, आदि का ताना ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता द्वारा આજનો આપણો કાર્યક્રમ એટલે કે રામાયણ, આજનો આપણો આ શો આપની સમક્ષ રજૂ કરતા અમને હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને અત્રે પધારેલ સમાજ કમિટીના સભ્યોનું આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. માધાપર વેલફેર એસોસિએશનના મેનેજિંગ કમિટી આપ સૌનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને હા, કોઈ પણ કાર્યક્રમ આપણે કરવો હોય તો લક્ષ્મીજીની તો જરૂર પડે, તો એ માટે અમારા સ્પોન્સર્સ જે પધારેલ છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ દરેક મહેમાનો આપ સૌનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આપ સૌ ઓડિયન્સ બનીને આવેલા દર્શક મિત્રો, આપ સૌનો પણ હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે છો એટલે અમે છીએ. કલાકાર જ્યારે સ્ટેજ ઉપર આવે પણ જો કોઈ એને જોનાર ના હોય કે એની કલાને માન આપનાર ના હોય તો એનો ઉત્સાહ નથી વધતો. એ બદલ આપ સૌનો ખરેખર હૃદયપૂર્વક અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આજનો આપણો કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ દિયા લાઇટિંગથી. તો દિયા લાઇટિંગ માટે આપણે બોલાવશું નીલને. હું વિનંતી કરીશ કે આગળનો કાર્યક્રમ આગળ વધારે. જય શ્રી રામ બધાને. I would like to call the following people for Diya Lighting event. For representing SCLP Samaj, I would like to call the Samaj Trustee Manjibai. Madhapur Welfare Association, I would like to call our chairman Mr. Mukund Budia. I would also like to call our platinum sponsors Mr. Mukesh Bhai or her wife Dashna Ben. I would also like to call lastly Mr. Harish Govind Ruda, our gold sponsors. Kindly come up on the stage for Diya Lighting event. એસ્કોર્ટ કરશો આપણા મહેમાનોને અને દિયા લાઇટિંગનો કાર્યક્રમ આપણે આગળ વધારીએ. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે આપણે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધારી દઈશું. Main part, let the play start. Welcome everyone. One more minute. I will call Rasila Ben to come on the stage and at least give a vote of thanks. Will not take much time. થોડી વારમાં જ આપણો જે પ્રોગ્રામ છે શરૂ કરશું. આપણે આપણા ટેકનિશિયનના કોલ ઉપર રેડી છો ને તમે લોકો? હા, બટ ગીવ અસ 1 મિનિટ. રસીલાબેન, આજે જે આપણે આ રામાયણનો શો કરવા જઈ રહ્યા છીએ, આપણે
મહિલા મંડળ છે ને માધાપરનું, તો એક થોટ્સને આપે જીવંત કર્યો છે. જ્યારે કહાની પેજ ઉપર હોય છે ત્યારે એ વાર્તા હોય છે, પણ એને જ્યારે પાર્ટિસિપન્ટ સ્ટેજ ઉપર જીવવાનું ચાલુ કરે ને ત્યારે એ નાટ્ય બને છે, એટલે કે નાટક બને છે. પણ નાટક કહેવા કરતાં તો આને આપણે રામલીલા બોલાવશું તો જરાક વધારે સારું. શા માટે રામાયણ જરૂરી છે? કે આપણી અત્યારની જે ફાસ્ટ લાઈફ છે અને આપણને મેન્ટલ સ્ટ્રેસ પણ બહુ છે, ત્યારે કઈ વસ્તુ આપણા હાર્ટને અને આપણા માઇન્ડને સુકૂન આપે છે, એમ આમાંથીને જીવવા જેવું છે. કે રામ શું શીખવાડે છે, લક્ષ્મણ શું શીખવાડે છે, સીતા શું શીખવાડે છે, કે રાવણ પણ શું શીખવાડે છે, આપણને કેટલું શીખવું છે સારું અને કેટલું શીખવું છે ખરાબ, એ બધી વસ્તુ આપણને આમાંથીને શીખવા મળે છે. તો અમારા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ બહુ મહેનત કરી છે. ખરેખર અમે 70 પાર્ટિસિપન્ટ્સ છીએ જે બધા નાનો મોટો રોલ કરે છે અને લગભગ 2 મહિનાથી ને મહેનત કરે છે. અને હોપફુલી અમે તમને ખરેખર એન્ટરટેન પૂરું પાડી શકીએ. ખાલી મને એક વસ્તુનો તમારો સહકારની જરૂર છે. વચ્ચે તો પ્લે બંધ નહીં થાય. 15 મિનિટનો અમે તમને બ્રેક આપશું, વોશરૂમ બ્રેક. તમને જો ખરેખર આ કાર્યક્રમ ગમે, એન્ડ ઓફ ધ કાર્યક્રમ મારા પાર્ટિસિપન્ટ્સને તમે તાળીઓના ગગડાટથી વધાવજો, કેમ કે આ છોકરાઓએ ખરેખર ખૂબ મહેનત કરી છે કે સ્ટેજ ઉપર આવવું, પરફોર્મન્સ કરવું. કોઈએ કદાચ ફર્સ્ટ ટાઈમ પણ આવ્યા હશે. બરાબર છે ને? રસીલાબેન, તમે રેડી છો વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે? जय श्री राम। आज की हमारी यात्रा बहुत ही अलौकिक है। यह गाथा उस प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार, अन्याय और अधर्म पर विजय पाता है। अरे, मैं तो अपना परिचय ही देना भूल गई। मैं पृथ्वी हूँ। युगों से मैंने मानवता का उत्थान और पतन देखा है। जब जब धर्म डगमगाया, तब तब विष्णु ने अवतार लेकर मेरा संतुलन पुनः प्रस्थापित किया। कभी वराह बनकर मुझे पाताल से ऊपर उठाया, कभी नरसिंह बनकर अहंकार का नाश किया, कभी वामन और परशुराम बनकर धर्म की मर्यादा जगाई। अब मैं आपको लिए चलती हूँ उस युग में जहाँ मानवता फिर संकट में थी और स्वयं विष्णु को राम रूप में अवतरित होना पड़ा। आइए आरंभ करते हैं उस कथा से जहाँ विष्णु के दशावतार धरती के प्रत्येक युगों को पावन करते हैं। पुराणों के अनुसार जब जब पाप और अधर्म का प्रकोप छाया है, तब तब मानवता की रक्षा के लिए धरती पर श्री विष्णु भगवान का अवतार आया है। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो तेरे पास में। ओछी हंडुरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो विश्वास में। संसार को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार लिया। पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए वराह अवतार लिया।
विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नरसिंह। वामना। परशुराम। ऐसे ही समय ने अपना कदम त्रेता युग में रखा। अधर्म ने फिर से अपना रूप दिखाया। राक्षसों ने तपस्वियों को बहुत सताया। भय और अन्याय से मेरी गोद फिर से भारी हो गई। मैं असहाय होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के पास गई और पुकार उठी, प्रभु, ओ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणियों की भी रक्षा करो। और तभी मेरी पुकार पहुंची अयोध्या नगरी तक। सरयू किनारे बसी यह नगरी, जहां राजा दशरथ धर्मप्रिय और न्यायकारी थे, परंतु उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों तक संतानहीन रहने के बाद उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से प्राप्त अमृत भाग्यवश उनकी रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को मिला। और इसी बीच रानी कौशल्या को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, देवी कौशल्या, क्यों चिंतित हो रही हैं आप? हे नारायण, दशरथ की रानी होकर भी आज मैं खाली हूँ। संसार मुझे रानी के नाम से पुकारता है, परंतु मातृत्व का सुख मुझसे दूर है। मेरा हृदय व्याकुल है, मेरी गोद सूनी है। अधर्म बढ़ चुका है, असुरों ने धरती को संतप्त कर दिया है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं अवतार लूं। मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर संसार को धर्म की राह दिखाऊंगा। तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। हे विष्णु, अगर आप सचमुच करुणा के सागर हैं तो मेरी गोद भर दीजिए, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। तुम्हारी कोख पवित्र है कौशल्या, तुम्हारा हृदय निर्मल है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें अपनी जननी चुना है। जल्दी ही वह समय आएगा जब संपूर्ण जगत तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माता कहकर पुकारेगा। हे नारायण, आप विलंब न कीजिए, जल्द ही मेरी गोद में बालक स्वरूप में आ जाइए। स्वप्न का संकेत अब सत्य बनने को था। अयोध्या की गलियां में उल्लास छा गया था। राजमहल में रानी की कोख पवित्र होने वाली थी। राजा दशरथ अधीर प्रतीक्षा में थे। धरती की गोद में जल्द ही अवतरित होने वाले थे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानकी कथा ज्ञान की, श्री रामायण मन
पच्छ अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन काल लोक विश्राम। महाराज बधाई हो बधाई, महारानी कौशल्या ने सूर्य समान पुत्र को जन्म दिया है। महाराज महाराज बधाई हो बधाई हो, महारानी कैकेयी ने दिव्य पुत्र को जन्म दिया है। महाराज महाराज बधाई हो, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। राम के जन्म से अयोध्या में उत्सव छा गया। राजा दशरथ की आंखों में गर्व था, माताओं की गोद आनंद से भर उठी। चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे आंचल में खेलते रहे। अभी समय आ गया राजकुमारों की शिक्षा का। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आइए मुनिवर, पधारिए। कैसे आना हो? राजन, अब समय आ गया है कि चारों पुत्र को शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी जाए। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। उसी समय राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्र को गुरु वशिष्ठ को सौंप दिया। गुरु वशिष्ठ राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम की ओर पैदल चल पड़े। सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम और उनके भ्राताओं ने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या में सिद्धि प्राप्त की। उनकी प्रतिभा और तेज से समस्त अयोध्या आनंदित थी। तभी एक नया अध्याय आरंभ हुआ। ऋषि विश्वामित्र महान तपस्वी और धर्म रक्षक राजा दशरथ के दरबार पहुंचे। प्रणाम मुनिवर, आपके श्री चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर, कृपा करके आपके आने का प्रयोजन बताइए। हे राजन, मुझे आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है, राम और लक्ष्मण। मेरे साथ चलें और हमारी सहायता करें और यज्ञ की रक्षा करें। उनके तेज से अधर्म का अंत होगा। राजन, विचलित न होइए।
यह तो स्वयं ईश्वर की इच्छा है। राम और लक्ष्मण के लिए यही प्रथम कर्म क्षेत्र है। जो आज्ञा गुरुदेव, राजकुमारों को बुलाया जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मुनिवर। क्या आज्ञा है पिताश्री? ऋषि विश्वामित्र के साथ जाइए और उनकी सहायता कीजिए। जो आज्ञा पिताश्री। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चल पड़े अयोध्या से वन मार्ग की ओर, जहाँ उनका प्रथम संग्राम होना था और धर्म की रक्षा की गाथा लिखी जानी थी। राम, लक्ष्मण, ये यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है। असुर बार बार इसे भंग कर देते हैं। तुम दोनों को सतर्क रहना होगा जब तक ये यज्ञ पूर्ण न हो जाए। गुरुदेव, निश्चिंत रहिए। जब तक हम यहाँ हैं, कोई अधर्मी इस कार्य को खंडित नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि कोई विघ्न आएगा तो मेरे बाणों से बच नहीं पाएगा। फिर से यज्ञ करने बैठे हो ऋषि। हम इस अग्नि को बुझा देंगे ताकि कोई देवता तुम्हारी आहुति स्वीकार ना करे। राम, यही वो ताड़का है। गुरुदेव, निश्चिंत रहिए। आप अपना कार्य अविरत रखिए। धन्य हो राम, धन्य हो लक्ष्मण। तुम्हारे पराक्रम से ये यज्ञ पूर्ण हो पाया। आज से धर्म का मार्ग प्रशस्त हो। इसी तरह राम और लक्ष्मण ने अपने प्रथम शौर्य से धर्म की रक्षा की। विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए और उन्हें आगे की यात्रा पर लेकर चले। चलते चलते श्री राम के चरण गौतम मुनि के आश्रम की शांत धूल में सोई श्रापित अहल्या तक पहुँचे। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी।
तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुअन में हरी। मन की आंखें तूने खोली, तू ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस। दूसरी ओर राजा जनक ने अपनी मिथिला नगरी में राजकुमारी सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। इसी दरमियान ऋषि विश्वामित्र राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी के बाहर आश्रम पहुँचे और अगली सुबह राम को पुष्प वाटिका से पूजा के लिए पुष्प लेने को भेजा, जहाँ मिथिला की राजकुमारी सीता माँ गौरी की पूजा के लिए आई हुई थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगा। अरे सखी, तुम्हें पता है हमारे मिथिला नगरी में 2 दिव्य राजकुमार आए हैं? अरे हाँ, मैंने भी सुना है, उसका तेज बहुत दिव्य है। सहेलियों की चहकाट के बीच राजकुमारी सीता और राजकुमार राम के नयन मिलन होते हैं और ये दृश्य देखकर मेरे साथ समय भी रुक सा जाता है, मानो 2 दिव्य शक्ति का मिलन हुआ हो और मैं भी झूम उठती हूँ। दूसरी तरफ अहंकार ने अपना कदम पहले ही जनकपुरी में रख दिया था। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी जन्म लेता है, जहाँ मर्यादा है वहाँ अहंकार भी शीर उठाता है। इसी ब्रह्मांड में एक नाम प्रतिध्वनित हुआ था, रावण। असीम शक्ति, अपार ज्ञान, परंतु गर्व से अंधा एक असुर सम्राट, जिसका दशामुख
केवल मुख नहीं बल्कि 10 दिशाओं में फैला हुआ अहंकार था। ये कहानी है एक ऐसे बुद्धिमान की जिसको हम एक ही नाम से जानते आए हैं, रावण। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणे नमः। तेरे 1000 वर्ष पूरे हुए राक्षस, तेरी घोर तपस्या सफल हुई। आंखें खोल राक्षस, आंखें खोल, बोल तुझे क्या चाहिए? सब चाहिए। लंका, कुबेर का महल, मैं हूं लंकेश, रावण। त्रिलोक मेरा नाम सुनकर कौप उठता है। मेरे वेदों का ज्ञान देवताओं से भी अधिक है। मेरी तपस्या ने स्वर्ग तक हिला दिया है। मैंने काल को भी चुनौती दी है। फिर कौन है जो मुझे रोक सके? देवता भी मेरी आज्ञा मानते हैं और आज मैं उसी ब्रह्मांड को झुकाने निकला हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ढगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। इसी तरह अहंकारी रावण सीता स्वयंवर में आ पहुंचा। जनक, मैं यहाँ स्वयंवर में नहीं आया हूँ। मैं तो शिव का भक्त हूँ। शिव धनुष लेने आया हूँ। जनक, तूने मेरे साथ छल किया है। मिथिला की इस पावन सभा में आज धर्म, सौंदर्य और शक्ति का मिलन होने जा रहा था। राजा जनक की पुत्री सीता स्वयंवर में उस पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी जो शिव धनुष उठाकर
अपनी वीरता को सिद्ध करे। इसी क्षण ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण उनके चरण पड़ते ही सभा में शांति सी छा गई। आइए आइए ऋषिवर पधारिए। मिथिला में आपका स्वागत है। राजा जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। राजन कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए। हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके? भैया, ये महाराज जनक क्या बात कर रहे हैं? जहां मेरे भैया रघुकुल नंदन उपस्थित हो, वहां क्या कोई क्षत्रिय का अपमान कर सकता है? अनुज, कृपया शांत रहो। हम यहाँ अतिथि हैं, हमें यह वाणी शोभा नहीं देती। हे राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के राजकुमार राम को शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का अवसर दिया जाए। रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। ये आवाज मुझे शिव धनुष टूटने की लगती है।
जनक, किस मूर्ख ने ये दुस्साहस किया है? अरे ये तो भगवान परशुराम है। अरे ये तो बहुत ही क्रोधित दिखते हैं। परम तपस्वी भगवान परशुराम के चरणों में जनक का कोटि कोटि नमन। कल्याणमस्तु। अभिनंदन जामदग्ने। नमस्तुभ्यम परम ऋषि। बस आगे आओ, भगवान परशुराम के श्री चरणों में वंदना करो। जरक, ये तुम सब मिलकर ऐसी वैसी बातें मत करो और ये बताओ कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है? एक धनुष टूट गया, इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुएं तोड़ डाली थी, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। लगता है आपको इस पुराने शिव धनुष से बहुत मोह है। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं। बालक, तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि आप बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुल नाशक अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। मैंने अब तक तुम्हें बालक समझकर जीवन छोड़ रखा था, लगता है तुम्हें कठोर दंड देना ही पड़ेगा। प्रणाम भगवान, आपके दास का प्रणाम स्वीकार करें। यह शिव धनुष मुझसे ही टूटा है। यदि कोई दंडनीय है तो वह मैं हूं। कौन हो तुम? अपने दास को पहचाना नहीं भगवान? रमाकंठे हारम श्रुतिव्रातसारम जलाधर विहारम धराभारहारम चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम धृतालेख रूपम भजेहम। हे राम, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। अभी मुझे लगता है मेरा समय आ गया है इस धरती को छोड़कर महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने का। राजकुमारी सीता को वरमाला के लिए बुलाया जाए। मंगल बाजे गूंज उठे। राम और सीता का दिव्य मिलन हुआ। धरती धन्य हुई, देवता प्रसन्न हुए, विवाह संपन्न हुआ। दशरथ राजा जो विवाह के लिए मिथिला आए थे, अब
वह चारों पुत्र और पुत्रवधुओं को लेकर अयोध्या पहुँचे, जहाँ माताएं बेसब्री से अपने बच्चों का स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु भाग्य की रेखाएं तो अक्सर मुस्कान के नीचे छिपी होती है। जो सुख आज था वही कल परीक्षा बनने वाला था। महारानी, आपने सुना राजा दशरथ तो राम का राज तिलक करने जा रहे हैं, तो अब हमारे भरत का क्या होगा? क्या वो सदा राजकुमार ही रहेगा? क्या कहती हो मंथरा? राम तो मेरे भी प्रिय हैं, उनमें क्या दोष है? दोष नहीं महारानी, सोचिए सोचिए, राम राजा बनेंगे तो भरत कहाँ रहेंगे? आपकी महिमा कहाँ रहेगी? आज निर्णय नहीं लिया तो सब कुछ छिन जाएगा। कौशल्या बनेगी राजमाता और तुम सोच लो। तुम ठीक कहती हो मंथरा। राजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। आज समय आ गया है उसे मांगने का। भरत के लिए अयोध्या और राम के लिए वनवास। और फिर वह क्षण आया जिसने अयोध्या के आनंद को शोक में बदल दिया। कैकेयी ने अपने वरदान मांगे। प्रिय, इतनी कठोर मत बनो, मत बनो, मत बनो। तुम्हारी पहली मनोकामना मुझे स्वीकार है, पर राम को वनवास मत भेजो, मत भेजो। महाराज, ऐसी वैसी बातें मत कीजिए। अगर आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी है तो बताइए, अन्यथा आप बोल दीजिए कि आप रघुकुल की रीत निभा नहीं सकते। राजा दशरथ का हृदय टूट गया, पर धर्म की मर्यादा के आगे रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रखने के लिए वो मौन रहे। राम ने बिना शिकायत किए अपने पिताजी का प्रण रखने के लिए वनवास को सहर्ष स्वीकारा। आज्ञा दीजिए पिताश्री। नहीं 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 राम। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आर्यपुत्र, मुझे भी साथ चलने की अनुमति दे। जहाँ आप हैं मेरे लिए वही अयोध्या है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। भैया, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। आपका सेवक हूँ, मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। आपका साया बनकर चलूंगा। नहीं सीता, नहीं लक्ष्मण। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन प्रस्थान कर गए और दूसरी ओर राजा दशरथ इतने दुखी हुए कि राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। अयोध्या वासियों से विदा लेकर श्री राम ने अपनी वन यात्रा आरंभ की। राम के वनवास से एक तरफ पूरी अयोध्या शोक में डूबी हुई थी और दूसरी ओर श्री राम के पावन चरण वन में पड़ते ही वन में मानो एक अलौकिक आनंद सा छा गया। तब वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट निषाद राजगुह और नाविक केवट से हुई। केवट, हमें गंगा पार करा दो। ना भैया ना, ये नहीं हो सकता। क्यों भैया? आपको गंगा पार करा दूं और मैं बीच में ही डूब जाऊं। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सह पाएगी? अरे भार तो तब सहेगी जब ये नाव रहेगी। अर्थात
हम समझे नहीं। इतने भोले मत बनिए कृपा निधान। इस चरणों की हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। इस चरणों की धूल के कारण से पत्थर में से नारी बन गई। इस चमत्कारी धूल की वजह से तो हमारी काठ की नाव न जाने क्या से क्या ही बन जाएगी। एक बार नाव गई तो फिर केवट की तो हो गई जय गंगा मैया की। ना भैया ना, हम आपको नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे भैया? एक ही उपाय है रघुवर। अगर आप मुझे आपके चरणों को धोने दे तो फिर ना रहेगी धूल, ना रहेगा चमत्कार। केवट, हमारे चरण धोने से तुम्हारे मन का संदेह दूर होता है, तो आओ अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराया और तीनों वहां से पंचवटी की ओर चल पड़े। राम और सीता अपना जीवन सादगी और तपश्चर्या से वन में व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन रावण की बहन राक्षसी सूर्णपंखा वन विचरण के लिए निकली थी और उसने राम को देखा और बोल पड़ी, आहा, ये कौन सुंदर पुरुष है। ऐसा तेज, ऐसी शांति अवश्य कोई देवता प्रतीत होते हैं। हे सुंदर राजकुमार, कौन हो तुम? इस वन में कौन सा तप करने आए हो? मुझे तो लगता है हम दोनों का साथ बहुत सुंदर रहेगा। देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। यह मेरी धर्मपत्नी सीता है। अगर तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर सकती हो। वहां देखो, वह रहा मेरा भाई लक्ष्मण। हे राजकुमार, क्या तुम मेरे से विवाह करोगे? मैं तो केवल एक सेवक हूँ देवी, अपने स्वामी की सेवा करता हूँ। तुम मेरे स्वामी को छोड़कर मेरे साथ क्यों विवाह करना चाहती हो? वहां जाओ, कदाचित तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तुम दोनों भाइयों ने मेरी कामनाओं का उपहास बना कर रखा है। केवल उस स्त्री के कारण मैं उसे अभी खा जाती हूँ। रुक जा नीच, मैं तुझे अभी सही पाठ पढ़ाऊंगा। इसी तरह लक्ष्मण ने सूर्णपंखा का नाक काट दिया और ऐसा अपमान किया कि वो वहां से सीधी रावण के पास पहुंची और इसी अपमान ने लंका के महाबली रावण के क्रोध को जन्म दिया। सूर्णपंखा के शब्दों ने लंका से प्रतिशोध की अग्नि उठाई, जो सीता हरण से लेकर लंका दहन तक जलती रही। इसी अपमान के चलते रावण ने मारीच को आदेश दिया, स्वर्ण मृग बनो और राम को दूर ले जाओ। मारीच ने रूप बदला और उसके शरीर से सोने की आभा फैल गई, जैसे माया ने धरती पर रूप धर लिया हो।
आर्यपुत्र, देखिए ना, यह कितना सुंदर मृग है। इसके जैसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। आप इसे पकड़ कर लाइए ना, मैं उसे अपनी कुटिया में रखूंगी। सीते, यह मृग साधारण नहीं लगता। वही तो मैं कह रही हूँ आर्यपुत्र। लक्ष्मण, लगता है मुझे तुम्हारे भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। जी भैया। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम इस कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जो आ गया भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनो ना, यह तुम्हारे भैया की आवाज है। यह अवश्य कोई संकट में है और तुम्हें पुकार रहे हैं। जल्दी जाओ और उनकी सहायता करो। माता, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। यह जरूर भ्रम है। लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम भयवश जाना नहीं चाहते हो। नहीं मैया, ऐसा नहीं है। यदि आपका आदेश है तो मैं अवश्य जाता हूँ, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस कुटिया के आंगन को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम तपस्वी। मैं एक भूखा तपस्वी हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। हे तपस्वी, अवश्य कृपा करके प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी फल लाती हूँ। लीजिए तपस्वी, इस फल को ग्रहण कीजिए। मैं एक तपस्वी हूँ, किसी के घर के भीतर प्रवेश नहीं करता। क्षमा कीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी घर पर नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकती। आप एक तपस्वी का अपमान कर रही है। मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ। नहीं नहीं मुनिवर, मैं अभी वहाँ आती हूँ। मैं कोई भिक्षुक नहीं, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, रावण। अरे पापी, दुराचारी, मुझे स्पर्श मत करना। मैं श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। वो वनवासी वन वन भटकता है, अब कोई राम तुम्हें बचा नहीं सकता। अरे पुत्र, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। लक्ष्मण, कहाँ हो तुम? कोई मेरी पुकार सुन रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पंचवटी में जैसे सन्नाटा सा छा गया। दूसरी ओर लक्ष्मण को देख के राम को आशंका हुई कि सीता कुटिया में नहीं होगी, जरूर कोई अनर्थ हुआ है। वापस आकर देखते हैं कि सीता कुटिया में नहीं है। राम के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। और फिर राम और लक्ष्मण निकल पड़े सीता की खोज में। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटकते रहे। हर पेड़, हर झरने से पूछते, सीता कहाँ हो तुम? इसी यात्रा में
वे पहुंचे एक साध्वी की कुटिया में। वह थी भक्त शबरी। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार में ये भागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन मैया तुमने तारी मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। राम और लक्ष्मण ने सबरी को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर लिया। अब प्रारंभ होने वाली थी एक ऐसी भक्ति और ऐसे सेवक की कहानी जो युगों तक अमर रहेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर
गिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। वन वन भटके राम और लक्ष्मण, वन वन भटके राम और लक्ष्मण, ढूंढ रहे सुग्रीव का धाम, जब श्री राम से मिले हनुमान, जब श्री राम से मिले हनुमान। हनुमंत मिलन के बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और वाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। उसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को श्री राम के चरणों में सीता शोध के लिए सौंपा। सीता की यह शोध अब सागर के पार थी, परंतु यह सागर केवल जल नहीं था, यह सीमा थी धैर्य और साहस की। यह सीमा केवल एक ही व्यक्ति लांघ सकता था, जो थे पवन पुत्र हनुमान। परंतु उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञात नहीं था और उनकी यह दिव्य शक्ति जाम्बुवन ने उसे याद दिलाई और कहा, उठो बजरंगबली उठो, आप यह कार्य कर सकते हो। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का टंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो जागो। प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस सागर को पार करके माँ सीता का समाचार लेकर अवश्य आऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव। हे पवन पुत्र, अगर आपको सीता मिले तो उसे निशानी के रूप में
यह अंगूठी अवश्य दीजिएगा। जो आ गया प्रभु। जय भगवान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूतातुलित बलधामा, अंजनी पुत्र सुखनामा, जय श्री राम। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, वज्रध्वजा विराजय कांते मुंज जने भूषा, जय शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जगावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान राम का दूत लंका की स्वर्ण दीवारों को छूते हुए भीतर प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने हर आंगन, हर महल, हर कोना खोज लिया था, हर बाग बगीचे देख लिए थे। बस बाकी थी एक अशोक वाटिका, जहाँ वो पहुँच गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा कि एक बड़े से वृक्ष के नीचे कोई बैठा है। उन्होंने सोचा यही देवी सीता लगती है। उनके पास जाके बोले, माता सीता, मैं हनुमान हूँ, श्री राम का दूत। प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। वो आपको लेने शीघ्र ही आएंगे। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? कहीं यह रावण का एक और छल तो नहीं? माता, मेरा विश्वास कीजिए, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और ये प्रमाण के रूप में उन्होंने ये अंगूठी दी है। इसे स्वीकार कीजिए। अरे, यह तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। पुत्र हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास आ गया है। क्या मेरे प्रभु सच में मुझे लेने आएंगे? हाँ हाँ माता, अवश्य आएंगे, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े से फल खा लूं? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य खा लो। जय श्री राम। और हनुमान ने अशोक वाटिका में ऐसा उद्यम मचाया, इसे देख रावण के सेवकों हनुमान को बंदी बना के रावण की सभा में लाया गया, जहां हनुमान ने एक और उत्पात मचाया। इस बार ऐसा वैसा नहीं, रावण की सोने की लंका को ही आग की लपेटों में ले लिया। ये था भगवान श्री राम की शक्ति का प्रमाण। जय श्री राम। जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर सिद्धि निधि के दाता, असुर दीन जान के माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न देई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ये सब देखकर रावण अति क्रोधित हुआ और युद्ध की घोषणा की। दूसरी ओर वानर सेना और श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया।
लंका की धरती कांप रही थी। आकाश में तीरों की गूंज थी। रावण और राम आमने सामने थे। एक ओर अहंकार और दूसरी ओर धर्म। आज था वह क्षण जब इतिहास स्वयं को लिखने वाला था। सेना आगे बढ़ो, ये धर्म का युद्ध है। हर बाण में राम का नाम, हर गर्जना में सत्य की शक्ति। भैया आज्ञा दीजिए, इस अधर्मी का प्रत्येक सिर मैं अभी धरती पे गिरा देता हूं। राम, तू एक साधारण मनुष्य है, मेरे सन्मुख खड़ा रहना तेरी भूल है। मैं दशानंद हूँ, देवताओं को भय देने वाला रावण हूं मैं, रावण। दुष्ट रावण, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। जिसने एक नारी का अपमान किया है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, धैर्य रखो। रावण का अंत उसके पापों से होगा, न कि हमारे क्रोध से। धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर सत्य की हमेशा विजय होती है। धर्म यह शब्द मनुष्य को धोखा देने के लिए है। शक्ति ही सत्य है। इस सृष्टि में शक्ति का स्वामी सिर्फ रावण है, रावण। धर्म के बिना शक्ति केवल विनाश है। तेरे यह 10 सिर अहंकार का प्रतीक है रावण, और आज तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। तीर बरसने लगे, गदा और तलवारें टकराई, वानर सेना गरज उठी। जय श्री राम! धरती थरथरा उठी, पर्वत कांप उठे और लंका के आसमान में अग्नि की वर्षा होने लगी। राम, अब रावण का प्रहार देख। हे ब्रह्मास्त्र, धर्म की रक्षा करो और अधर्म का नाश करो। सावधान रावण! हे राम! विदा। शेष दक्षिणा रावण की अंतिम क्षण है। वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो स्वामी। हर हर महादेव। शंभु। और उस क्षण लंका मौन हो गई। रावण का अंत हुआ, पर राम ने विजय नहीं मनाई, क्योंकि धर्म को गर्व नहीं था, नम्रता शोभा देती है। प्रभु, अधर्म का अंत हुआ
और सत्य की जीत हुई। भैया, आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। रावण, तेरी विद्या महान है, पर तेरे अहंकार ने तुझे पतन की ओर धकेल दिया। परंतु तेरा ज्ञान हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि ज्ञान किसी का शत्रु नहीं होता। इस प्रकार लंका की धरती पर धर्म ने फिर जन्म लिया। अहंकार की लपेटें बुझ गई, सत्य की ज्योति प्रज्वलित हुई। राम ने केवल युद्ध नहीं जीता, उन्होंने मानवता को मर्यादा का मार्ग दिखाया। युगों तक यह वाणी गूंजती रहेगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर श्री राम ने हनुमान जी के हाथों अयोध्या वापसी का संदेश भिजवाया और अयोध्या में हर्षोल्लास छा गया। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सामने कोटि सूर्य साथे, नारायण कर आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रात, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हो गए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। 14 वर्ष का वनवास अब पूर्ण हुआ, अधर्म का अंत हुआ, रावण का पतन हो चुका था। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी जननी भूमि अयोध्या लौट रहे थे। आकाश में पुष्पक विमान उतर रहा था और अयोध्या की गलियां दीपों से जगमगा उठी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणं। आजानु भुज शर चाप धर संग
मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला। आज से अयोध्या सिर्फ राम की नहीं पर भरत की भी है। भैया राम, 14 वर्ष से यह राज्य केवल आपका इंतजार कर रहा था। मैंने ये राज सिंहासन आपके नाम पर रखा। आपकी पादुका इस अयोध्या की रक्षक रहे। अयोध्या में दीप जल उठे, हर द्वार हर आंगन में उजाला फैल गया। जन जन जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। आज केवल राजा नहीं लौटा था, धर्म लौटा था, प्रेम लौटा था और मर्यादा लौटी थी। ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો. અત્યારે કોઈ દિવસ મારા હાથ કાપે નહીં, પણ આજે થાય છે. થેન્ક યુ. તમારી તાળીઓનો ગગડાટ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જેમ મેં કહ્યું કે વાર્તા હોય એ બુકમાં હોય, કહાનિयाँ सिर्फ હોય એ बुक में होए, कहानियाँ सिर्फ बुक में होती है, पर जब ये सब स्टेज पर आते हैं ना तो ये जीवंत हो जाती है. ये बताती है कि कैसे हमें जीना चाहिए. आप સૌએ એ લોકોના બધાયના તમે ઊભા થઈને તાળીઓનો ગગડાટથીને વધાવ્યા. ડિનર પણ રેડી છે, પણ 2 મિનિટ વધારે લઈશ. હોપ તમને કોઈને આમ શ્યોર નહીં વાંધો હોય. ઝડપથીને હું બધાનો થેન્ક યુ બોલી જાઉં. શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ કમિટી, માધાપર વેલફેર એસોસિએશન કમિટી, અમારા બધા પાર્ટિસિપેન્ટ્સ, અમારા ફોટોગ્રાફર ડબલ ડી અને અમારા કેયુરભાઈ જે ટેકનિશિયન્સ છે,
અમારા પ્લેના કોર્ડિનેટર રસીલાબેન, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને હા, અમારા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે ને મારી ફેમિલી થઈ ગઈ છે. 2 મહિનાથી હું એ લોકોને વઢ્યા જ રાખું છું, રાઈટ? આજે મજા આવી ને? 2 મહિનાથી એ લોકો હું આવું ને તો મને કહેશે ટીચર પ્રભા આવી ગયા, વિચ આઈ લાઈક ઇટ. પણ થેન્ક યુ સો મચ. ડાયરેક્ટેડ બાય પ્રભા વરસાણી, માય સેલ્ફ. થેન્ક યુ સો મચ. હોપ તમને ગમ્યું હોય. કોમેન્ટ, કોમ્પ્લિમેન્ટ, યુ મોસ્ટ વેલકમ ટુ ટેલ અસ. અમે બીજો કંઈ પ્રયાસ કરીએ તો જરૂરથી ને એને આવરી લેશું. આ બધાનો આભારની સાથે સાથે જલારામ સત્સંગ મંડળનો અને એમની કમિટીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેઓએ અમને આ રીતે સ્ટેજ અને બધી રીતે ખૂબ અમને હેલ્પ કરી છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, આપ સૌનો મને લાગે છે પાર્ટિસિપન્ટ્સ, આપણે એમના માટે તાળીઓ વધારવી જોઈએ. તમે છો એટલે અમે છીએ. આપ હે इसलिए हम हैं. તમારી સહાયતા વગર, તમારી સહારણા વગર, તમારી પ્રેમભરી નજર વગર અમારું કોઈ મહત્વ નથી. સો થેન્ક યુ સો મચ એવરીબડી. આઈ થિંક ડિનર વિલ બી સર્વ શોર્ટલી. તો તમે ફ્રી છો બહાર જઈને ફોટોગ્રાફ પડવા હોય, કેરેક્ટરને અહીંયાથી ને પુલ કરી જવા હોય, યુ ફ્રી ટુ ડુ એવરીથિંગ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સો મચ. જય શ્રી રામ બધાને. હું એક વસ્તુ એડ કરીશ. આ બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે એમાંથી કોઈ પ્રોફેશનલ નથી અને બધી એજના પાર્ટિસિપન્ટ છે. અમારા ઇનફેક્ટ 6 યર્સથી કરીને 65 યર્સ સુધીના. અને અમારા કમિટી મેમ્બર પણ છે અને અમારી લેડીઝ વિંગની બધી જ લેડીઝ વોલેન્ટિયર પણ કર્યું છે, પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ કર્યું છે. અને બધા ક્વેશ્ચન જોવો છો બધામાં બધા એટલી સહયોગ કર્યો છે. તો કોઈ પ્રોફેશનલ નથી પણ અમે ટ્રાય કરી છે કે થેન્ક યુ રસીલાબેન, થેન્ક યુ સો મચ. અમારી લેડીઝનો જલવો, જો તમે એક વસ્તુ નોટ કરી છે, અમારા રામ પણ લેડીઝ છે. અમે એમાં થોડાક બાયસ થયા છીએ. એટલે અમને જે મેઇન કેરેક્ટર છે એ પણ લેડીઝ જોતું હતું. સો થેન્ક યુ સો મચ એવરીબડી વન્સ અગેન. And you're most welcome for the dinner. Dinner will be served at Jalaram dining hall. So our volunteer will guide you and please પેટ ભરીને જમજો. રાજા રામ ઘરે આવ્યા છે. અસંતે નિશાના. Thank you. Nice. Very good acting, Lavanya. મને લાગે છે બીજો શો પાછો શરૂ કરીએ, કોઈને જવું નથી. Are you once more right? That is gift for us. Anybody wants to say something about it? Okay, thank you so much, participants. You are free to go. Yeah, Ravana rayo. Sawa. Thank you, participants. My participants are tired. Please volunteer, feed them nicely. Thank you, everyone.